इधर से कुछ क्वेश्चन करना है आपको, रिपीट करें तो रिपीट. लेट्स सी हियर. There is a body of mass m. Initially its velocity is u. Then because of that force F, the velocity increases and it becomes v. ठीक है, F फोर्स लगाने से जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होकर कितनी हो गई, v हो गई. तो यहां से अगर हम इनिशियल मोमेंटम निकालें तो इनिशियल मोमेंटम कितना जाएगा, mu. और फाइनल मोमेंटम कितना जाएगा, mv. ठीक है, और टाइम इंटरवल कितना जाएगा, t. ठीक है, सो चेंज इन मोमेंटम इज mv माइनस mu and time interval is t. Now, according to Newton's second law, the external force applied is directly proportional to rate of change in momentum. Rate of change in momentum का मतलब होता है change in momentum with respect to time. So mv minus mu divided by t. ठीक है, अब यहां से हम m को कॉमन ले लेते हैं. So if I take m as a common, then this is v minus u by t. Now v minus u by t is the change in momentum, change in velocity with respect to time. Now change in velocity with respect to time is acceleration a. Change in velocity with respect to time is acceleration a. Okay. So I write here a. So f is proportional to m है. तो जब भी proportional का साइन हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है. This constant is called proportionality constant. So I write k here. K is a proportionality constant. So in SI unit the value of k is 1. So put here the value of k is 1, then you will get a formula F is equal to ma. So this F is equal to ma is called equation of motion. Okay. Now it is clear, Aditi? Now it is clear, F is equal to ma. Clear है यहाँ तक? एक बार okay लिख दो. Okay. Now in today's lecture, I will take some examples on the basis of Newton's second law. ठीक है, we will see some examples and these examples you can explain on the basis of Newton's second law. ठीक है, सेकेंड लॉ के बेसिस पर आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं. और ये आज का आपका होमवर्क भी है. आज के होमवर्क में आपको ये जो एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ इनको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, नाउ लेट्स फर्स्ट सी हियर. यू कैन सी हियर दैट बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम इंटरवल. चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम इंटरवल. तो आप यहाँ ध्यान से देखो कि अगर टाइम इंटरवल को घटाया जाए, if I decrease the time interval, so if I decrease the time interval then momentum will increase or decrease. देखो इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले में अगर टाइम इंटरवल डिक्रीज किया जाए तो मोमेंटम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बोलो. इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज. अंशिका इंक्रीज, वेरी गुड बेटा. सो द मोमेंटम विल इंक्रीज. ध्यान से देखना आप. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन एक्सप्लेन ऑल दीज एग्जांपल्स. So if the time interval will decrease, then the momentum will increase, and then momentum will increase so that the force will increase or decrease. Force will also increase. Clear है ये बात? अगर टाइम इंटरवल आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि अगर टाइम इंटरवल डिक्रीज होता है, if time interval will decrease then the momentum will increase, and because momentum will increase so that the force will also increase. Now this force I will say impact. इस फोर्स को मैं क्या बोलूंगा, इम्पैक्ट. ठीक है, ध्यान रखना. इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट. सिमिलरली इफ टाइम इंटरवल विल इंक्रीज, if time interval will increase then what happens, the momentum will decrease, and because momentum will decrease so that the impact will also decrease. समझ में आ गया? टाइम इंटरवल अगर कम होता है तो इम्पैक्ट बढ़ेगा, टाइम इंटरवल अगर बढ़ता है तो फोर्स या इम्पैक्ट जो होगा वो डिक्रीज होगा. समझ में आ गई बात? क्लियर है सबको? ठीक है. नाउ लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल. नाउ फर्स्ट एग्जांपल इज कैचिंग अ क्रिकेट बॉल. नाउ यू कैन सी व्हेन द प्लेयर कैचिंग अ क्रिकेट बॉल ही मूव्स हिज हैंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, सो दैट ही कैन कैच द बॉल सेफली, and there is a less chance that the ball will bounce back or bounce fall from his hand. ठीक है,
So to catch a ball safely he will move his hands in a backward direction. The question, now the question is that why he moves his hand in a backward direction? Why he moves his hand in a backward direction? So let's see here why he moves his hand in a backward direction. So you can see here, this is a first case. In a first case, if he does not move his hand in a backward direction, this is a first case. When he does not move his hand in a backward direction, then what happens? Let mass of a ball is m, the velocity is v. Now if he does not move his hand in a backward direction, then what happens? The velocity suddenly becomes zero. The velocity suddenly becomes zero. So if I consider this is a momentum p1, then what happens? Its momentum p2 is becomes zero. Okay. Now from here, if I determine the change in momentum, so what is a change in momentum? Change in momentum is mv minus zero. दिख रहा है आपको? बात समझ में आ रही है? If a person does not move his hand in a backward direction, player, then what happens? His velocity, the velocity of a ball becomes zero suddenly. So that time interval is less. Now time interval is less, change in momentum is high. ठीक है? Time interval is less, change in momentum is high, so that impact is also high. Now because impact is also high, by this impact the ball will meet to a hand of a player, and it will apply a force on a hand of a player, and at the same time the player hand will also apply a force on a ball, and so that there is a chance that ball will bounce back or fall from the player's hand. ये बात समझ में आई या नहीं आई? दोबारा बताते हैं, सुनो ध्यान से. बॉल का मास m है, उसकी वेलोसिटी v है. ठीक है? सो व्हेन द स्ट्राइक्स बॉल स्ट्राइक्स द हैंड ऑफ अ प्लेयर, तो प्लेयर का अगर हैंड है वो पीछे की तरफ उसको नहीं ले जा रहा, तो सडनली उसका जो मोमेंटम है वो जीरो हो जाएगा बॉल का. और सडनली जब मोमेंटम जीरो होगा तो आप देखो चेंज इन मोमेंटम कितना आ रहा है, mv. ठीक है? और टाइम इंटरवल क्या है, लेस. तो टाइम इंटरवल अगर लेस है तो मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा, और मोमेंटम ज्यादा होगा तो जो इम्पैक्ट है वो भी ज्यादा होगा. और ज्यादा इम्पैक्ट होने की वजह से, इतने इम्पैक्ट से जब बॉल प्लेयर के हाथ पर लगेगी तो वो वहां से वापस क्या होगी, बाउंस बैक हो जाएगी या फॉल हो जाएगी उसके हाथ में से. ठीक है? सो दिस इज अ फर्स्ट केस. नाउ लेट्स सी अ केस हियर. सो अगेन द मास ऑफ अ बॉल इज m and its velocity is v. ठीक है? नाउ व्हाट हैपेंस if a player moves his hand in a backward direction, then the velocity decreases to u. जो वेलोसिटी हो रही है वो कितनी हो रही है, डिक्रीज होकर u हो रही है. अब इस केस में अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालूं, इसको हटा देते हैं अभी. इस केस में अगर चेंज इन मोमेंटम निकाले तो क्या आ जाएगा, mu माइनस mv. ठीक है? तो यहां पर क्या हो रहा है, मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है. पर अच्छा ये बताओ कि इस केस में तो आप जीरो को माइनस कर रहे थे, इस केस में आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू माइनस हो रही है. तो कौन से वाले केस में मोमेंटम कम हो रहा है, पहले वाले केस में या सेकंड केस में? मोमेंटम कम किस में हो रहा है, मतलब फर्स्ट केस में या सेकंड में? सेकंड में क्या हो रहा है, ग्रेजुअली. हाँ, कम तो वो फर्स्ट में भी हो रहा है, फर्स्ट में भी वो कम हो रहा है, पर सेकंड में आप देखो वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है. अगर जो प्लेयर है, प्लेयर मूव्स हिज हैंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर प्लेयर जो है वो अपना हैंड पीछे की तरफ लाता है, तो पीछे की तरफ जब वो लाएगा तो वेलोसिटी जो डिक्रीज हो रही है, तो वहां इस फर्स्ट केस में तो वेलोसिटी क्या हो रही थी, सडनली जीरो हो रही थी. पहले केस में तो वेलोसिटी क्या हो रही थी, सडनली जीरो हो रही थी. इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी धीरे धीरे जीरो होगी. तो वेलोसिटी धीरे धीरे जीरो होगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा. टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम डिक्रीज होगा. और चेंज इन मोमेंटम अगर डिक्रीज होगा तो इम्पैक्ट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. और इम्पैक्ट डिक्रीज होने की वजह से लेस चांस होंगे कि जो बॉल है वो प्लेयर के हाथ में से गिर जाए या बाउंस बैक हो जाए. समझ में आया?
इसलिए जो प्लेयर है वो क्या करता है, अपने हाथ को पीछे की तरफ करता है, ही मूव्स हिज हैंड इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो एक लास्ट बार आप समझो बात को, पॉइंट ये है कि a player moves his hand in a backward direction so that the time interval will increase, and because time interval will increase so that the change in momentum decreases gradually. So change in momentum decreases gradually and the impact will also decrease. Now because the impact will decrease so that there is a less chance that the ball will bounce back from the player's hand. ये समझ में आ गया या नहीं आया? ओके लिख दो एक बार, ओके लिख दो, या कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन कर लो, बताओ। आया समझ में? ठीक है। Now let's see another example. Let's see here this example. In this example, a person is falling on a concrete floor and a person is falling on a sand. तो आपसे क्वेश्चन ये है, in which case it is harmful, falling on a concrete floor or falling on a sand? किस केस में उसके ज्यादा चोट लगेगी, किस केस में उसको ज्यादा नुकसान होगा, बोलो। कंक्रीट फ्लोर पर या सैंड में? थैंक यू। हाँ बोलो भाई। कंक्रीट फ्लोर पर, सबने कंक्रीट फ्लोर आंसर करा है। अब रीजन बता दो, चलो रीजन बताओ क्यों, व्हाई, व्हाई इट इज मोर हार्मफुल टू फॉल ऑन अ कंक्रीट फ्लोर एज कंपेयर टू अ सैंड? क्या होता है ऐसा कि कंक्रीट पे गिरने से ज्यादा उसको चोट लगेगी और एज कंपेयर टू सैंड? बताओ। Because the directly goes to zero. Very good. So velocity suddenly becomes zero so that the momentum is high, or I can say because it is very, बोलो भाई आकिफ, क्या लिखना चाहते हो? It is very hard. हाँ आकिफ, हाँ ठीक है, चलो हम बता देते हैं। तो रीजन आप इस तरह से दे सकते हो, when a person falls on a concrete floor its velocity suddenly becomes zero so that the time interval is very short. Now because the time interval is very short, the momentum is very high, and because momentum is very high, the impact is very high in case of a concrete floor. Now you can see here in a sand, when he falls on a sand, so thus he goes into the sand up to some distance. Because he goes into the, similarly what I explained here, you can see here also, so that there is some time interval. Now because there is time interval, so that the momentum is less, or I can say the change in momentum occurs gradually. So there is some time interval, so change in momentum is less, or the change in momentum occurs gradually, so that impact is also less. So when a person falls on a sand, that is less harmful as compared to when a person falls on a concrete floor. It's okay? Okay explanation, ठीक है? Now the another example is why the belt is provided in a car. इसका आंसर करो। अच्छा ये ध्यान रखना, जिस what topic you are discussing, your answer should be within that topic. The reason could be, number of reasons could be there, but your answer should be like a point what we are discussing. So my question is, why the seat belts are provided in a car? What is the reason to provide a seat belts? Why it is this instruction is given that while you are driving a car, please wear your seat belt? Why seat belt is provided in a car? करो आंसर बताओ इसका। So your answer should be what point we are। हाँ अब ओजस्वी लिख रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी के आपको कोई चोरी कर लेगा क्या कार में से? क्यों ओजस्वी? सिक्योरिटी क्या चोरी कर लेगा कोई आपको, वो भी चलती कार में? As sir the time will increase so that the, okay, it will increase momentum, increase momentum। अगर अंशिका अगर मोमेंटम इंक्रीज कर दिया तो इम्पैक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, ये तो दिक्कत हो जाएगी। डिक्रीज मोमेंटम, ओके। सो हाउ अ मोमेंटम विल डिक्रीज, हाउ अ मोमेंटम विल डिक्रीज व्हेन यू वियर अ सीट बेल्ट?
If you wear a seat belt and you suddenly apply a brake, more time taken. Very good. तो मैंने आपको जस्ट अभी पॉइंट बोला है एक पॉइंट इज देयर कुड बी अ नंबर ऑफ रीजंस बट योर आंसर शुड बी इन अ पॉइंट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग. So we are discussing a time interval, we are discussing a momentum, and we are discussing a impact. So if you wear a belt and then suddenly you apply a brake, then what happens? You will get a more time to change in velocity. So when you get a more time to change in velocity, what happens? The time interval is more. Now because time interval is more, the change in momentum is less, and because change in momentum is less, so that the impact is less. ठीक है. और आई कैन से डेट इम्पैक्ट मीन्स जो आप आगे की तरफ जा रहे हो वो फॉरवर्ड जो मोशन है वो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. यस ओजस्वी, बिल्कुल करेक्ट है. बिल्कुल बेटा सही है ओजस्वी. तो हमेशा हमें क्या करना है, आंसर जब भी हम करेंगे तो काफी सारे आंसर हो सकते हैं, किसी भी बात के काफी रीजन हो सकते हैं, बट योर आंसर शुड बी इन अ पॉइंट्स विच आर रिलीवेंट एट दैट डिस्कशन. उस डिस्कशन में जो रिलेवेंट है आपको वो उससे आंसर करना है. बिल्कुल करेक्ट आंसर है ओजस्वी आपका. हर्षित का भी सही है, शौर्य का भी सही है, और भी काफी बच्चों ने सही आंसर करे. ओके, सो नाउ व्हाट इज योर होमवर्क? योर होमवर्क इज टू राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री एग्जाम्पल्स. ये जो एग्जाम्पल्स है इनके एक्सप्लेनेशन आपको देने हैं. ठीक है. कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, अदरवाइज आई विल मूव टू अ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक. कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, नो प्रॉब्लम. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा. नेक्स्ट पॉइंट आई हैव सम न्यूमेरिकल्स. सो लेट्स सी सम न्यूमेरिकल्स एंड टुमारो आई विल स्टार्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ. ठीक है, टुमारो आई विल स्टार्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ. So let's solve some numericals. So see here, this is a first question. What force would be needed to produce an acceleration of 4 meter per second square in a ball of mass 6 kilogram? इसका आंसर बताओ. अच्छा, जिस क्वेश्चन में ना ऑल दीज क्वेश्चंस ऑफ योर एनसीईआरटी लेवल, कठिन बहुत इजी इजी से क्वेश्चंस हैं, फिर भी जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होगी वो मैं सॉल्व करा दूंगा. So first answer this question. What is the answer of this question? What force would be needed to produce an acceleration of 4 meter per second square in a ball of mass 6 kilogram? अच्छा, अब ये इतने इजी क्वेश्चन है, एटलीस्ट सब लोग आंसर कर दो यार इसका. तो इतना इजी क्वेश्चन है, आई होप एवरी वन ऑफ यू कैन आंसर. Okay, 24 Newton. So it is very easy. Just you apply a formula, Newton's second law, or the equation of motion, F is equal to ma, you will get answer. Okay. Now let's solve this next. What is the acceleration produced by a force of 12 Newton exerted on an object of mass 3 kilogram? Next इसका आंसर करो. What is the acceleration produced by a force of 12 Newton exerted on an object of mass 3 kilogram? करो आंसर इसका. 4 meter per second square. Very good. Ojasvi, Anshika, very good. Anyone else? Ojasvi Jain. Angel is also in this section. Akif, 4 meter per second square. Okay, okay. Shori, 4 meter. Very good. Tanishq, very good. Okay, I think every one of you are capable to solve this question. Now let's move to next question. Question number 3. Let's see this question. Question number 3. Calculate the force required to impart to a car a velocity of 30 meter per second in 10 seconds starting from rest. The mass of the car is 1500 किलोग्राम. इसका आंसर बताओ. ये सॉल्व कर रखा है आपने, आंसर काफी जल्दी दे रहे हो. थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू अ कार a velocity of 30 meter per second in 10 seconds starting from rest
the mass of the car is 1500 kilogram. Okay, so आप करो, आंसर करो आप लोग, all of you try to solve this. I am just writing here the quantities given. So this is question number 3. गिवन डेटा, क्या क्या डेटा आपको गिवन है? तो मास गिवन है आपको, कार का मास बता रहे हैं 1500 किलोग्राम है। किस वेलोसिटी से वो चल रहा है? इनिशियल वेलोसिटी आई थिंक 30 मीटर पर सेकंड गिवन है। नाउ जब वो रेस्ट में आ जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकंड। और टाइम आपको दिया हुआ है इसके अंदर, इन दिस क्वेश्चन टाइम गिवन इज 10 सेकंड। Okay, so first you determine the acceleration. Acceleration is v minus u by t. Okay, so v is 0, u is 30, time is given is 10 second, 10 minus 0. So minus 30 divided by 10. So it is minus 3 meter per second square. तो माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि जब आप ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी क्या होगी? रिटार्ड होगी। सो दिस इज अ रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन आपका नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, नाउ ही इज आस्किंग अ फोर्स। सो फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ आप लगाओगे, बाय द न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपको गिवन है 1500, एक्सेलरेशन है -3, तो दिस इज माइनस 4500 न्यूटन। सो दिस फोर्स इज अ रजिस्टिंग फोर्स। अगर नेगेटिव में आ रहा है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे? रजिस्टिंग फोर्स। समझ में आया सबको किस तरह से सॉल्यूशन करना है? दिस इज अ वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट राइट द गिवन डेटा, नाउ चेक ऑल यूनिट्स आर इन SI यूनिट्स, सो ऑल यूनिट्स आर इन SI यूनिट्स, then write the formula. By the formula determine the acceleration. This acceleration is in a negative, so this is a retardation. Okay, now apply a Newton's second law. आपको यहाँ ऊपर लिखना पड़ेगा बिल्कुल, जब एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तो क्या लिखोगे आप? बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक है, नाउ राइटिंग दिस, यूज दिस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट, दिस इज अ रेजिस्टिंग फोर्स। रिटार्डेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से कहा स्टार्ट कर रहा है मैक? अ बॉडी इज ऑलरेडी मूविंग विद 30 मीटर पर सेकेंड, अ कार इज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकेंड, सो इट इज रिटार्डेड टू 0। ब्रेक लगाया तो वो रुक गई, रुक गई मतलब 0 मीटर पर सेकेंड। ओके मैक, अच्छा कुछ ओके ओके ओके, आई विल करेक्ट इट। अच्छा ये भी सही है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मास जो है वो है 1500 किलोग्राम। ठीक है, वेल इनिशियली योर कार इज इन अ रेस्ट, so your car is in a rest, thank you Mac. So your car is in a rest, so u is equal to 0. Now he is saying to achieve the velocity of 30 meter per second, how much force is applied? ठीक है, और ये भी ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी हो गया आपके पास, एक क्वेश्चन ये भी हो जाएगा। तो इसमें एक्सेलरेशन निकाल लो आप, v माइनस यू बाय टी। सो v is 30, u is 0, time is 10 minus 0, so it is 3 meter per second square. So he is asking that how much force is required to achieve the velocity of 30 meter per second. So force is equal to mass into acceleration. Mass is your 1500, this is 3, so this is 4500 Newton. ठीक है बेटा महक, नाउ इट इज क्लियर। ये भी सही है कि 30 पर चल रहा था, आपने ब्रेक लगाया 0 हो गया। सो एक्चुअली अपन ने दोनों ही पॉइंट कवर कर लिए इसके अंदर, बट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज 4500 न्यूटन। जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर ये आएगा 4500 न्यूटन। वो 0 पर थी, इनिशियल से स्टार्ट करा उसने मोशन, और कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली? 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये यहाँ तक? ओके देन जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो दिस इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन ये स्पीड टाइम ग्राफ हमें गिवन है। आपको ये बताना है सबसे पहले कि ये जो कार है वो 6 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके बताओ मुझे, हाउ मच डिस्टेंस दिस कार विल कवर इन 6 सेकंड। ग्राफ ध्यान से देख लो फर्स्ट, लेट्स
क्लियर है, सबको दिख रहा है? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी के स्क्रीन में दिक्कत हो? Just first see this graph. This is a speed time graph. So I am asking you that how much distance a car will cover in 6 seconds. Clear है question एकदम? My question is how much distance this car will cover in 6 seconds. आंसर करो. I am asking for 6 seconds. I am asking for 6 seconds. How much distance this car will cover in 6 seconds? 1.90 meter, Ojasvi. Okay. 90. My question is not for 2 seconds. My question is for 6 seconds. How much distance this car will cover in 6 seconds? हाँ, क्वेश्चन में 2 सेकंड बोला है, बट मैं आई एम आस्किंग फॉर 6 सेकंड. We will solve these points 1, 2 also. I am just checking that you all are aware how to calculate a distance cover from the speed time graph. I am just checking all of you. I am just checking all of you that you all students are able to determine the distance cover in 6 seconds or not. 90 meter, 90, 75 meter, 90 meter, Anshika, 82.5, Harshit, Shaurya, 90. Still, I don't think these answers are correct. I don't think this question, these answers are correct. Just check the speed time graph first. See the speed time graph, then give answer. Still answer is not correct. Find out carefully. I am waiting for your answer. I am waiting for answer. Correct answer actually. 67.5. Okay, Harshit. 67.5. Yes, anyone else is solving? Solve this, solve. Check where you all are making mistake. शौर्य बताओ आंसर. महक क्या आंसर होगा? व्हाट इज द राइट आंसर? जीरो मीटर? अरे यार ओजस्वी, ये क्या कर रहे हो? अंशिका 65. Okay, let's see here. Now to determine the distance cover, we calculate the area. So this is a first triangle. This is a first triangle. This is a rectangle. This is a rectangle, and this is another triangle. So now calculate the area of this triangle, then area of this triangle, then area of this, or the area of this rectangle, then area of this triangle. मैंने ये नहीं सोचा था यार इतना आप लोग आंसर नहीं कर पाओगे. 67.5 is correct answer. 67.5 is a correct answer. So the distance cover in 6 second. So distance cover in 6 second. पहला जो triangle है उसका 1/2 base into height. तो 1/2 2 into 15. Then rectangle का area 15 into 3. प्लस जो लास्ट वाला ट्राइंगल है उसमें टाइम इंटरवल 1 सेकंड का है. 5 to 6 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है, तो 1 आएगा और 15. ठीक है. सो यहाँ से 15 आ जाएगा, ये 45, देन दिस इज 7.5. ऐड कर लो आप इन सबको. सो योर आंसर इज 67.5 मीटर. सो द करेक्ट आंसर इज 67.5 मीटर. समझ में आया? तो भाई जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्योंकि कई बार हम उसी क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं जो हमें बहुत अच्छा आता है. ये ध्यान रखना. ये बिल्कुल मेरे साथ भी होता था, और मैं ये आपको भी बता रहा हूँ. हमेशा गलती उसी क्वेश्चन में होने के चांस ज्यादा होते हैं जो हमें बहुत अच्छा आता है, क्योंकि हम थोड़े केयरलेस हो जाते हैं. ठीक है. तो अभी आगे आपको
नाउ डिस्टेंस कवर इन 2 सेकेंड, वो तो आप लोगों ने सबने आंसर सही करा ही था. सो डिस्टेंस कवर इन 2 सेकेंड इज 1/2, 2 × 15. सो आंसर इज 15 मीटर. ठीक है. नाउ ही इज आस्किंग दैट a car is deaccelerating from B to C. This car is deaccelerating या रिटार्डिंग. तो यहां पर मुझे रिटार्डेशन निकालनी है. तो रिटार्डेशन कैसे निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं उसकी. ठीक है. तो बी से लेके सी तक के अगर अपन स्लोप निकालेंगे तो कोई बताएगा कितना आएगा यहाँ पर रिटार्डेशन? मुझे बी से लेके सी तक जो लास्ट वाला टाइम इंटरवल है 1 सेकेंड का, इस 1 सेकेंड के लिए रिटार्डेशन निकालना है. कैसे निकालेंगे रिटार्डेशन? हाफ मिनट दे रहा हूं मैं आपको, आधा मिनट है आपके पास, हाफ मिनट. फाइंड आउट. कैसे निकालोगे भाई रिटार्डेशन? इसमें बी से लेके सी तक कितनी रिटार्डेशन है? क्या तरीका है? क्या चीज नहीं, क्या निकाले अपन? बताओ किस चीज को कैलकुलेट करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ में? तो एक्सेलरेशन आता है. नेम लिखो उसका. स्लोप. तो स्लोप निकाल के बताओ बी से लेके सी तक. बी से सी तक स्लोप कैसे निकालोगे? बताओ आंसर क्या होगा? 2.5. ओके. 2.5. ओजस्वी बहुत अच्छे से पढ़ाई करो बेटा. But I am happy that you are giving answer at least. Those students who are giving answer are far better than those are just sitting and watching this lecture. भले ही गलत आंसर करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आंसर करो. इससे एटलीस्ट आपको पता तो लग रहा है कि आपको कहाँ पे काम करने की जरूरत है. ठीक है. हाँ. ठीक है. स्लोप निकालेंगे. स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है. स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस. तो वाई एक्सिस पे क्वांटिटी चेंज हो रही है बी से सी, तो सी पर इसकी वेलोसिटी है 0, बी पर इसकी वेलोसिटी है 15, और टाइम इंटरवल कितना आ रहा है? 1 सेकेंड का. ठीक है. सो व्हेन यू डिटरमाइन अ स्लोप यू विल राइट 0 - 15 डिवाइड बाय 6 - 5. ठीक है. सो ये आएगा माइनस के 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो माइनस के 15 मतलब ये तो रिटार्डेशन है, माइनस मतलब रिटार्डेशन. तो ब्रेकिंग फोर्स जो आएगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. मास आपको दिया हुआ है 1000 किलोग्राम. ठीक है. मास इज 1000 किलोग्राम. तो आपका आंसर आएगा -15,000 न्यूटन. और -15,000 मतलब -15 किलो न्यूटन. 1000 को किलो बोला जाता है. तो आंसर क्या आएगा? -15 किलो न्यूटन. ठीक है. तो सबको क्लियर है ये आंसर? किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो बताओ. कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, अदरवाइज ओके लिख दो. कोई डाउट नहीं है? नथिंग. ओके. ओके. सो ओके. ओके देन. क्लियर है ना सबको? है ना? चलो. सिक्स्थ क्वेश्चन दिख रहा है आपको? सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ अब. ओनली व्हाट वी आर फाइंडिंग हियर, डिस्टेंस ऑफ स्लोप. अरे भाई क्वेश्चन देखो ना. आपको लास्ट का जो 1 सेकेंड है उसमें कितना ब्रेक फोर्स लगाना है वो निकालना है. और ब्रेक फोर्स कैसे आएगा? एक्सीलरेशन से. और एक्सीलरेशन कैसे आएगी? इसकी स्लोप निकालने से. लास्ट के 1 सेकेंड में कितना ब्रेक फोर्स लगाया ये फाइंड आउट करना था हमको. तो ब्रेक फोर्स आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन से. मास तो गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है. मास तो गिवन है. एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? इसकी स्लोप निकाल के. ठीक है. क्लियर है हर्षित? ओके. हर्षित. हाँ ये बताओ सिक्स्थ वाले का आंसर बताओ. लेस देन 1 मिनट बचा हुआ है, इसका आंसर बता दो क्या होगा. होमवर्क सबको समझ में आ गया? होमवर्क में आपको जो वो 3 एग्जाम्पल दिए थे उनके एक्सप्लेनेशन करने हैं. और मैं आपको पिक भेजूंगा इन क्वेश्चंस की. इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, सारे क्वेश्चंस की. ये असाइनमेंट नहीं है आपका, ये आपको प्रैक्टिस करने हैं. ठीक है. और असाइनमेंट है आपके जो वो 3 एग्जाम्पल थे उन 3 एग्जाम्पल्स का आपको एक्सप्लेनेशन करना है. ठीक है ना?
तो देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग अ 10 ग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड और 20 ग्राम मास एट 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व करोगे, कौन सा आ रहा है ज्यादा? 10 ग्राम मास फॉर 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, ओके। सो मैं आज आपको इनकी पिक भेज दूंगा क्वेश्चंस की, आपको ट्राई करना है। जो क्वेश्चन